what I was saying is that usually your class should be between 6 to 15, right? तो बहुत बड़े क्लास हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके क्लासेस जो नंबर ऑफ क्लासेस वो कम होंगे, और नंबर ऑफ क्लासेस कम हो गए यानी बहुत ज्यादा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा एक ही क्लास के बीच में, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, राइट? और कंसंट्रेशन बहुत लगेगा। अगर ज्यादा क्लासेस हो गए तो भी डिफिकल्ट एनालाइज करना, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस है, यू नीड टू गो टू ईच एंड एवरी क्लास इन डिटेल। So your range of the classes should be between 6 and 15. Now, while finding out that how many classes one should have, right, we need to find the range of the classes, right? And before finding the range of classes, we need to find the range of the data. So what is the range basically? Range hota kya hai? Range is nothing but difference between the largest and smallest values of variable, right? अगर आप largest और smallest value of variable अगर आप निकाल दो तो what you get is range. For example, in our data, as in the marks of mathematics obtained by students, your smallest number is 0, the largest number is 100, right? So your range is what? What will be your range? Your range will be something like largest value, that is highest value, minus lowest value, right? That is your range. So क्या आएगा range आपका? Yes, 100 minus 0, that is equal to 100, right? So range निकाल लो तो आपको पहले तो ये समझ में आएगा रेंज से कि हाउ मच डेटा इज स्प्रेडेड, डेटा कितना फैला हुआ है, स्प्रेडेड कितना है, सबसे पहली चीज आपको यही समझ में आएगी इससे। तो इन हियर आल्सो दे फाउंड द रेंज, राइट? नाउ as I told you in the class also, there's a formula how to find out the number of classes from the range. So once you get a range, range is always equal to number of classes into class length और क्लास इंटरवल जिसको हम बोलते हैं, राइट? सो अगर आपकी रेंज 100 है एंड नंबर ऑफ क्लासेस अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 5, तो क्लास लेंथ क्या होगी? सो इट इंप्लाइज दैट क्लास लेंथ इज इक्वल टू 100/5 और लेंथ आपकी होगी 20। 20 का क्लास बनेगा 20 का। जहाँ यही चीज यहाँ पे समझाई गई आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेंज है 100, राइट? और लेट्स से नंबर ऑफ सॉरी क्लास इंटरवल मुझे मिल गया है, क्लास इंटरवल कितना है? क्लास लेंथ इंटरवल यानी गैप, जो लिमिट का गैप 10 है। सो व्हाट विल बी माय नंबर क्लास साइज और लेट्स से नंबर ऑफ क्लासेस, राइट? या फिर मेरे पास ऐसा भी हो कि मेरे पास है क्लास साइज, यानी दो लिमिट के बीच का साइज क्या है, राइट? यानी क्लास लेंथ क्या है? That is 10. So what is the number of classes? So number of classes would be range upon class length या class interval या class size, जो भी बोल सकते हो। That is 100/10, that is equal to 10. Are you getting this? Yes, sir. Okay. Next is what should be the size of each class? हर एक class का size क्या होना चाहिए? Now this can be also determined with the help of this formula. अगर आपको size चाहिए, that means your missing figure would be this. So what you are going to do? और क्लास लाइन मिसिंग है तो आपके पास दो वेरिएबल रहेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस यू हैव रेंज, कैन यू फाइंड क्लास इंटरवल और क्लास साइज या फिर उसको क्लास लेंथ बोलो, कैन यू फाइंड दैट? यस, कैन वी? लेट्स सी, राइट? फॉर एग्जांपल you have a range, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, right? And just try to solve this. Let's say I have a range of 54, right? Let's say मेरा highest value of data है let's say 60 and lowest value of data है 6. So range क्या आएगी मेरी? 54.
Now if I want to construct a class, where I should start? तो let's say मेरे पास है क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस मुझे कितने बनाने मुझे पता है, राइट? अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे 6 नंबर ऑफ क्लासेस बनाने हैं, आई वांट 6 क्लासेस, राइट? तो मेरा पहला नंबर क्या होना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पहला क्लास कैसा होना चाहिए? सो वी नो दैट इफ आई नो द नंबर ऑफ क्लासेस, कैन आई गेट अ क्लास लेंथ? Again, the formula is range is equal to number of classes into class length. So I have 54 as a range. Number of classes मेरे पास कितने हैं? 6 चाहिए मुझे. Can I get class length? Yes. Can anyone tell me class length क्या आएगी? Yes. 9. Yes, class length is 9. So if you get the class length as 9, beta, what is the first class would be? पहला class कैसा होगा? अब start कहाँ से करोगे? Because your lowest value is what? 6. 6 से 9 जोड़ दो तो पहला क्लास कैसा बनेगा आपको? 6 to 15. Yes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 तक आता है, बाकी 15 एक्सक्लूडेड है, तो 15, 6 plus 9, 15. नेक्स्ट कैसा बनेगा? 15 plus 6, 21. नेक्स्ट बनेगा 21 plus 6, 27. नेक्स्ट बनेगा 27 plus 6, 33. नेक्स्ट 33 plus 6, 39. Right? Then 39 plus 6, 45. Right? But अगर 6 से क्लास में बनाने जाऊंगा तो मेरे 9 क्लासेस बनेंगे. उल्टा है दोनों, यानी अगर नंबर ऑफ क्लासेस मेरे 9 हो गए तो क्लास लेंथ 6 हो जाएगा. यहाँ पे 6 का क्लास लेंथ लिया है, राइट? पर अगर मैं 9 का क्लास लेंथ देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 plus 9, 15. 15 plus 9 कितना होगा? 24. 24 plus 9, 33. राइट? मैं 9 का इंटरवल ले रहा हूँ अभी, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, राइट? 33 plus 9, 42. 42 plus 9, 51. And 51 plus 9, 60. तो मेरे हो गए 6 क्लासेस, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और सी 60 is the last number that I've chosen. तो यहाँ पे भी 60 है हाईएस्ट वैल्यू, और यहाँ पे भी 60, और लोएस्ट वैल्यू दोनों में भी सेम है. यस और नो? 6. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर. काफी टाइम बोला होगा सब में कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनाने हैं. काफी टाइम आपको बोला होगा कि क्लास लेंथ कितनी लेनी है. अगर आपको दो चीज मिल जाती है, रेंज एंड एनी ऑफ द अदर वेरिएबल, जैसे कि नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास लेंथ, द वेरी फर्स्ट थिंग यू गेट इज आइदर नंबर ऑफ क्लासेस आपको मिलेगा या क्लास लेंथ मिलेगी. उसके बाद आपको क्या करना है? आपको लोएस्ट वैल्यू लेके चालू करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द क्लासेस एंड मेक श्योर दैट हाईएस्ट नंबर उसमें कवर अप हो जाए. क्लियर है ये? Yes. हाउ शुड वी डिटरमाइन द क्लास लिमिट्स? अभी ये भी एक सवाल है कि क्लास लिमिट को कैसे डिटरमाइन किया जाए. याद रखिए कि क्लास लिमिट जो भी है उसको डेफिनेट और क्लियरली स्टेट करना बहुत जरूरी है. जैसे कि ओपन एंडेड क्लासेस है, राइट? मैं बता दूं आप, यहाँ पे क्लासेस भी दो तरह के आते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. ये क्या होता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड? अगर मैं क्लास ऐसे लिखूं, राइट, बिलो 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, क्लास लिखो 50 एंड अबव,
राइट, जस्ट अ मिनट। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओपन एंडेड। क्यों ओपन एंडेड है ये? क्योंकि अगर हम देखेंगे ध्यान से इसको, तो बिलो नंबर कोई भी आ सकता है और अबोव नंबर भी कोई भी हो सकता है। 50 से ऊपर वाले भी कोई भी हो सकते हैं और 20 के नीचे वाले भी कोई भी हो सकता है। पर यहाँ पे अगर मैं ये अबव बिलो निकाल दूं फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे क्लासेस को रख दूं, यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस राइट अरेंज कर दूं, जैसे 10 to 20 और 50 to 60, सो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? दिस विल बी क्लोज एंडेड। इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोज, यानी ये क्लोज कर दिया मैंने क्लास को, ओपन एंडेड नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्लासेस। एक नंबर दे दिया ना मैंने, पहले भी और बाद में भी, राइट। सो जब भी ओपन एंडेड क्लासेस हो तो समझ लेना है कि ऐसा लिखा होगा, किसी के अबव और किसी के बिलो वाला। द क्लास लिमिट शुड बी डिफाइंड एंड क्लियरली स्टेटेड। रिमेंबर, क्लास लिमिट जब भी आप बनाओ तो उसको बराबर डिफाइन करो और स्टेट करो। जैसे कि ओपन एंडेड क्लासेस आप जब बनाओ वो डिजायरेबल नहीं है, हो सके तो उसको अवॉइड करो, बिकॉज इट्स नेवर डिजायरेबल। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे की वैल्यू क्या आएगी या ऊपर की वैल्यू क्या आएगी। The lower and upper ended classes limits should be determined in such a manner that the frequency of each class tend to concentrate in the middle of the class intervals. आपको ऐसे बनाना है कि हर एक क्लास लिमिट राइट उसकी मिड वैल्यू जो है, दोनों क्लास लिमिट के जो सेंटर की वैल्यू है वो उसके इर्द गिर्द ही आपका डेटा ऑब्जर्वेशन घूम रहा हो। सो फॉर एग्जांपल 14, सो इट विल कम वेयर 10 to 20 के बीच में आएगा। let's say 33, 30 to 43 के बीच में आएगा, राइट। तो वो आपको याद रखना है, या फिर आप एकदम अवॉइड मत करो, या फिर ओपन एंडेड क्लासेस बनाना एकदम ही अवॉइड करो, क्लोज एंडेड क्लासेस बनाने की ही आदत डालो, राइट। वेयर योर लिमिट्स, योर क्लास लिमिट्स आर क्लियरली डिफाइंड। अगर आप क्लास लिमिट को डिफाइन नहीं कर पाओगे बेटा, देन क्लासेस का मतलब ही नहीं है। In some case, yes, definitely we can understand. In some case, we have to create an open-ended classes. There's no option. But हो सके तब तक open-ended classes को मत create करो, right? अभी क्लासेस बनाने के लिए दो तरह के इंटरवल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक इंटरवल्स है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स और दूसरा है एक्सक्लूसिव। तो जब क्लासेस ऐसे हो 0 से 10, 11 to 20, 21 to 30, तो उसको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड है, राइट। यानी 0 से 10 के अंदर 0 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। जबकि अगर मैं क्लास ऐसा बनाऊं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट जो होती है, राइट, क्लास की अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड की जाती है, राइट। नॉर्मली अपर लिमिट ही एक्सक्लूड की जाती है। जैसे कि एग्जांपल 0 से 10 अगर मैं क्लास बनाऊं तो उसके अंदर 10 को एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी 10 को लिखा नहीं जाएगा, 10 को माना भी नहीं जाएगा। लिखेंगे जरूर हम 0 से 10, पर 9.9999 डिजिट तक ही हम लेंगे, राइट, उसके आगे हम नहीं लेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, आइदर द अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड, और इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव मेथड पड़ा है। रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मली कोई भी क्लास की अपर लिमिट ही एक्सक्लूडेड होगी, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो, जनरली, पर ऐसा कोई रूल नहीं है, लोअर लिमिट भी एक्सक्लूड हो सकती है, राइट। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट, ये आपको पता ही है। सो वी नो दैट, and now in here they have given an example about the inclusive class interval और exclusive class interval। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल तो आएगा 0 से 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अगर कोई पूछे तो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 वैसे चलेगा। नाउ इसमें ड्रॉबैक क्या है? तो इंक्लूसिव क्लास में एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप क्लास इंटरवल लिखते तो हो,
right? It's okay, but there are some class or there are some observations which are not included in this inclusive series. Like if I ask about the observation like 20.2, so you cannot try 20.2 anywhere because this 20.2 is digit is above 20 but below 21, और हमारे पास ऐसा कोई क्लास नहीं है कि जो अबाउट 20 हो और 21 के बिलो हो. इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये पूरी जो सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है. अगर हम देखें 20 और 21 के बीच में तो कंटिन्यूसली नहीं बैठ रहा है, यानी 20 और 21 के बीच के में 1 डिजिट का गैप है. और अगर ऐसा गैप है तो लेट मी टेल यू कि वो डिजिट अगर आ जाए जैसे कि 20.2, so it will be very confusing to put in the classes. बहुत कंफ्यूज हो जाए. और इसी वजह से this inclusive class intervals have their limitations. इसलिए स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स यूज होते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स यूज नहीं होते. राइट, रिमेंबर, अगर आप इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए भी गए हो then you need to convert into exclusive class intervals as soon as possible. right? यहाँ पे वही समझाया है वापस आपको कि उसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड की जाती है, राइट, इसीलिए उसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं. राइट, जैसे एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल यहाँ पे दिए गए, काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि 30 से जैसे 39.9999 कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो कंटिन्यूस वेरिएबल. राइट, यानी इसके अंदर 30 और 40 के बीच में अगर आप क्लास रखोगे, इफ यू कीप अ क्लास लाइक दिस 30 to 40, तो इसमें 30 to 30.99999 आ जाएगा, बट 40 नहीं आएगा. ये 40 नेक्स्ट क्लास में आएगा और वो होगा 40 to 50 क्लास में. राइट, वहां पे 40 से लेके 49.9999 आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? Now, how we are going to do this adjustment, right, of class interval in case of inclusive method, right? So ये जो gap of 1 है वो हम कैसे adjust करें? तो आज सुबह भी डिस्कशन हुआ, राइट नाउ आल्सो आई विल डू द सेम थिंग. जैसे कि यहाँ पे क्लासेस आपके हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 800 से लेके 899 के क्लास है और बाद में 900 से 999. द सिमिलर एग्जांपल इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. राइट, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको देयर इज अ गैप ऑफ 1, राइट, एंड दिस गैप ऑफ 1 हैज टू बी फुलफिल्ड. तो ये गैप ऑफ 1, जो इतना भी गैप आता है दोनों के बीच में, यू हैव टू डिवाइड बिटवीन बोथ द क्लासेस, the former classes and the next class also, right? तो उन्होंने क्या किया है? What we need to do is the gap of 1 we need to find it out first. Whatever the gap, 0.5 का हो तो 0.5, 0.25 का हो तो 0.25, और जो भी 1 का गैप आ रहा है उसे 0.5 से एक में ऐड कर देना है, दूसरे में माइनस कर देना है. यानी फॉर्मर क्लास में ऐड करोगे और नेक्स्ट क्लास में माइनस कर दोगे. तो जैसे ही फॉर्मर क्लास के अपर क्लास लिमिट में प्लस 0.5 ऐड, तो नेक्स्ट क्लास लिमिट में 0.5 माइनस. अगर आप ऐसा करोगे देन यू गेट द कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज. आपने क्या किया, इससे इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. राइट, दैट इज 799.5 से लेके 899.5 हो गया. बट रिमेंबर, ये 0.5 का रूल ऐसे ही नहीं बिठा देना है. You need to take the upper limit of the former class, the lower limit of the next class, and then you need to divide by 2, right? जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखने जाएं, ऑब्जर्व करें, then the upper limit of the former class is what? 899. Lower limit of the next class is 900. So your question would be like this. Your answer would be like this. And that is equal to, are you getting it?
if the classes are equal, the gap you can fulfill uniformly. जैसे यहाँ पे क्लास लेंथ इक्वल है और इसीलिए उन्होंने 0.5 का गैप यूनिफॉर्मली उन्होंने फुलफिल कर दिया है. It is easy, right? But in case if the class length are not equal, then you need to look कि class length है क्या, right? आपको देखना पड़ेगा. So this is what we call adjusted class limits, right? And the class limit, this way if we adjust it, we also call them as boundary points. हम क्या बोलते हैं उसको? Boundary points of each class. Now boundary points को अगर अच्छे से बोलने जाए तो बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं? क्लास की जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है, राइट, दैट इज दिस 799.5 और एंडिंग वैल्यू जो होती है पूरे सभी क्लास की 1399.5. दिस इज एक्चुअली योर बाउंड्री पॉइंट्स. ये पूरे सभी क्लास के बाउंड्री पॉइंट्स यही होते हैं, यानी द फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट, राइट. Now I'm not going to go further than this. Tomorrow we are going to understand about the frequency, how to find out the frequency and all that.